ابھی نہیں, بعد میں کریں گے. آ جا تو آ جا, ابھی شوٹ نہیں کریں گے. یہ ڈی ایچ اے ہے نا, ہاں ڈی ایچ اے ہاں یہ ادھر سے نہیں یہ دروازہ آ جا اندر آ جا. بس. ہاں آپ مجھے اندر بس یہ بند کر دیں, بند کر دیں. جی فصیح بھائی ویلکم جی, سک بھائی ویلکم ہو گیا جی, بہت شکریہ آپ کا جی. شہباز حسین بارہ صاحب لاہور سے ویلکم کرتے ہیں جی. سک بھائی ہمارے بڑے بھائی ساتھ آئے ہیں جی. جی دوستو, آج طوفانی ٹور کا چوتھا دن ہے آج, نہیں بلکہ 5واں دن ہے, جس میں کیا نام ہے بھائی, لیاقت بلوچ. یہ لیاقت بھائی بھی میرے ساتھ آ گئے جی. اس وقت جی کراچی کا ایک بہت بڑا نام سینئر کبوتر پرور سر سید ہاشم اسحاق صاحب ڈی ایچ اے سے یہ میں لائیو ہوں جی. ایسی ہے نا جی 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 ہاں جی. یہ وہ پرسنالٹی ہے جی جو بہت کم لوگوں کو ملتی ہے, بہت کم لوگوں, بلکہ میڈیا میں آتے ہی نہیں ہے, میں نے کبھی آتے دیکھا ہے ان کو, ٹھیک ہے نا جی. اور بزرگ ہیں, سینئرز ہیں, ان کے ساتھ ملنا بھی ایک اعزاز ہے. میں آج ان سے کوئی گفتگو کروں گا. میں جب جاؤں گا ادھر تو میرے ساتھ استاد سردار عظیم خان اور راشد زیدی اور میکائل دورانی اور سر ہاشم صاحب بھی میرے ساتھ ہوں گے جی. ماشاءاللہ ابھی میں جا رہا ہوں بس, انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں لگے گی. بس میں یہ تھوڑے تھوڑے کے برڈ دکھا رہا ہوں آپ کو. آج کل تو پر پٹائی ہو گئی ہے نا ابراہیم, جی جی پر پٹائی ہو گئی ہے سر. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. چلے جی میں نا ابھی آغاز کروں گا جی. یہاں پہ آپ انار اور انگور جو ہے اس طرح سے لگا تو لیتے ہو لیکن نکال کے دکھاؤ. اچھا یہ ویسے بادام ہے, یہ ساری چیزیں. ہاں ہاں ضرور بتائیے. راشد بھائی یہ اتنا بڑا اعزاز ہے نا آج میرے لیے جی کہ سینئرز کے ساتھ ملاقات, اشتیاق رہتا تھا ان سے ملنے کا. آپ نے پاکستان بھر کے شائقین کے ساتھ آپ نے انٹرویو کیا ہوگا, بات کی ہوگی, مگر آپ آج جس شخصیت کے پاس بیٹھے ہوئے وہ سمجھ لیں فخر کراچی ہے. کبوتر پروری کے حوالے سے فخر کراچی ہے ہمارا بڑا. یہ سمجھیں کہ اللہ پاک نے غرور کرنے کے لیے منع کیا, یہ ہمارے غرور ہے کبوتر بازی میں. جی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارے پاس ان کی بڑی محبت ہے. جب ہم اپنے پیپر میں اپنے ساتھ ان کا نام کہیں لکھتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے, بڑی انسیت ہوتی ہے. محفلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا پروگرام کے اندر بھی کتنا بہترین تعارف تھا ان کا. ہاں جی, ان کا جی بے شک ہمارے پاس الفاظ کم ہیں مگر تعارف ان کا بہت زیادہ ہے. سر ہاشم اسحاق صاحب جو ہیں, انہوں نے اپریل ایک ایسا سیزن تھا جس میں کراچی کبوتر بازی تقریباً ختم ہو چکی ہے. کراچی کے تمام یونینز نے اپریل کے اندر شوق نہیں کیا, جی مگر ہاشم اسحاق صاحب نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اپریل کے اندر سردار عبدالقیوم خان صاحب کے ساتھ اور ان کی ٹیم کے ساتھ, عارف احمد خان صاحب ان کے بڑے اچھے ساتھیوں میں سے ہیں, ان کی کاوشوں سے کراچی کے اندر 2 بڑے ٹورنامنٹس ایسے موقع پر آرگنائز کیے ہاشم صاحب نے جب کراچی میں کہیں پورے شہر میں کبوتر بازی نہیں تھی. صرف ایک ہی کپ اڑ رہا تھا, ہاشم اسحاق صاحب کپ کا ان کے نام سے انہوں نے آرگنائز کرایا. ہم نے اس کے اندر محنت کی, کاوشیں تھیں. اگلے سیزن میں اسی ٹورنامنٹ کو دیکھتے ہوئے سر ظفر احمد شیخ صاحب کے نام سے بھی ایک کپ کراچی کے, یعنی کہ سینئر استادوں کی یہ کاوشیں تھیں اور ان کا نام تھا جن کی وجہ سے یہ ٹورنامنٹ آلریڈی کامیاب ہو گیا. ہاشم صاحب نے کہا کہ میں ایک شوق کرنا چاہ رہا ہوں, 8 10 12 چھتیں ہو جائیں گی, مل کے اچھا شوق ہو جائے گا. مگر ایک نام کا اثر تھا یا کراچی گرینڈ الائنس کی قابلیت تھی, شوق کی, کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم کو ہمیں موقع دیا شوق کرانے کا. ماشاءاللہ 17 چھتیں آئیں اور ابھی میں نے میکائل کا ذکر کیا تھا نا آپ سے, ہاں جی بالکل, تو میکائل بھی ہمارے اس ٹورنامنٹ کا حصہ تھے. بہت اچھی پروازی مقابلے ہوئے اس کے اندر. ہاشم صاحب کے نام سے موسم گرما اپریل کا شوق
उस वक्त जब कराची का कोई कबूतरबाजी नहीं हुई, इन्होंने इसको तकवीत दी और हमें मौका दिया, हमने खिदमत की इस शौक की। हाशिम साहब का ताल्लुक सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कबूतर परवरी, जी ठीक है, पाकिस्तान से लेकर बर्रे सगीर की एक हिस्ट्रिकल फैमिली से इनका ताल्लुक है। सर सैयद शहीद उनकी फैमिली से पड़पोते हैं, उनकी ब्लड लाइन से माशाल्लाह इनका ताल्लुक। सर नहीं थे वो, सैयद अहमद शहीद थे बालाकोट वाले, जिनको हम उस खानदान से ताल्लुक है। जी शाह साहब मैं आपको प्यार से कह लूँ, जी बिल्कुल है, शाह जी कह लूँगा आपको प्यार से, ठीक है जी, क्योंकि आप सर चलो सर हाशिम कहते हैं आपको, नहीं सैयद हाशिम कह लेते हैं, सैयद हाशिम कह दूँ, हमने दिया है, नहीं जो आप कहें सैयद हाशिम कह लूँ, बस हाशिम साहब, हाशिम भाई कह लेंगे, चलो हाशिम भाई मेरे लिए मैं समझता हूँ कि आज आज़ाद है, क्योंकि मैं जब पोस्टें बनाता था ना आपकी तस्वीर लगती थी उसमें, इनविटेशन कप जब आपका लॉन्च होता था उसमें भी आपका जिक्र खैर आता था, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी, टाइम बहुत शॉर्ट होता था। जैसे मिकाइल मेरे साथ इस वक्त है जी, ये देखें, वालेकुम सलाम, मैं 2 साल पहले आया था तो इससे मिला, आज बहुत सारी दोबारा गुफ्तगू हुई, और उनके सारे मोहतरम माशाल्लाह वो तो किसी तारीफ के मोहताज ही नहीं है जी, हमारे बड़े भाई हैं जी। एजाज़ सबसे ये है कि आप जैसे बड़े लोग सीनियर और एज भी देखें, एज और आप शौक भी कर रहे हैं सारा, एक अच्छी फैमिली, शहीदों की फैमिली से आपका तल्लक भी है। रात अपना राशिद भाई ने डिटेल के साथ हम बैठे हुए जिक्र ये कर रहे थे, लेकिन ये प्रोग्राम अचानक ही हुआ है, मैं सरप्राइज़ है मेरे लिए जी। आज के हवाले से ये जो दौर गुजर रहा है इसमें कबूतर परवरी को और ज़माने को कैसा देखते हैं आप बड़े लोग? क्या सवाल था आपका? मेरा सवाल ये था कि कबूतर परवरी शौक आप शौकीन हो, ठीक है ना जी, और जदीद दौर में इसको आप कैसा देख रहे हो कि कुछ तब्दीलियाँ हैं कि या क्या अहमियत है इसमें, क्योंकि आप ये कर सकते हो? देखिए कबूतरबाजी जो है वो तो एक शौक है जी, ठीक है, समझे, ज़माना बदले या ज़माना नहीं बदले मगर शौक जिनका होता है वो बरकरार रहा करता है जी। तो ये जिनको शौक है, जैसे मुझे है, इनको राशिद साहब को है, इनको है जी, अजीम भाई को है, ये बैठे हैं मिकाइल नौजवान है जी, माशाल्लाह। तो शौक तो अपनी जगह होता है और बाकी हालात अपनी जगह होते हैं, ठीक ठीक। शौक में कोई कमी नहीं आनी चाहिए किसी सूरत में। मैंने इसीलिए ये बात की थी कि मैं देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में एक तो ये शौक बहुत महंगा हो गया है, ये महंगा हो गया है, दाना बहुत महंगा हो गया है, बर्ड बहुत कीमती हो गया है, जैसे 10-20 रुपए 100 रुपए वाली तो बात ही नहीं रही ना, 500 वाली बात नहीं रही, अब तो लाखों की बात चली गई है सारी। तो मैं इसलिए ये सवाल मैंने किया था कि कैसे देख रहे हैं आने वाले वक्त में इसको, शौक को? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि शौक बरकरार रहेगा, हाँ जी, कम लोग शौक करेंगे, शौक कम हो जाए, और दाना भी महंगा है, कबूतर भी बहुत महंगे हो गए हैं, मगर ऐसा नहीं है कि लोग शौक छोड़ दें। जी ठीक है, जी ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि ये शौक ख़त्म होगा, या बस इसमें जो कमी आ सकती है वो पैसों या किसी और वजह से हो सकती है, ठीक। मगर सर ये एक कराची का शौक जो है बहुत ज़माने से चल रहा है, कुछ पट्टी वालों ने भी इसमें अंदर हिस्सा ले लिया था। कराची के अंदर समझ लें कि चारों तरफ पट्टी वालों की आवाज़ आ रही थी, मगर आप एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने इसको कायम रखा और अपने दोस्तों को इससे मुंसलिक रखा, जोड़े रखा इस टूर्नामेंट के हवाले से। आपने क्या स्ट्रगल रही, आपने क्या किस तरह से इसको कायम रखा इस शौक को कराची के अंदर? देखिए बात ये थी कि हमारा जो क्लब था जी, डिफेंस क्लब कहलाता था शुरू जी, कोसार या डिफेंस क्लब, उसका जो बुनियादी मकसद था वो ये है कि ऊंचे परवाज के कबूतरों की परवरिश की जाए जी। उसमें ये नहीं था कि 118 घंटे बन गए या 140 घंटे बन गए जी, हम तो 40, 45, 50 घंटे को बहुत बड़ा समझते थे जी। अब तो खैर तरक्की ऐसी हो गई कि लोग 70 और 75 घंटे बना रहे हैं काबलियों में, मगर पहले ये नहीं होता था, पहले 50 घंटे बहुत अच्छे समझे जाते जी जी। अब क्या वजह है, उसकी दवाओं का असर है या उन्होंने नस्लें क्रॉस कर दी हैं पट्टी वालों से, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे तो शौक सिंपल काबली कबूतर का है, मैं ना क्रॉस करता हूँ ना मुझे शौक है। मैं अब भी ये समझता हूँ कि अगर मैं 50 घंटे किसी टूर्नामेंट में बना लूँ तो वो मुनासिब है, बिल्कुल उसमें कोई कमी नहीं है। 75-80 की जो बातें हैं ये चंद लोग हैं जो बहुत ही अच्छे उड़ाने वाले हैं, उनके पास दवाएं ऐसी हैं कि वो बना लेते हैं, हम नहीं बना सकते।
हाशिम साहब, पिछले दिनों जो टूर्नामेंट्स रहे उसके अंदर आपने माशाल्लाह बेहतरीन कामयाबी हासिल की और आपकी जो छत है वो टॉप ऑफ द लिस्ट जो बड़े खिलाड़ी हैं कराची के, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि जी वहाँ बेशक मैं खुद देखता हूँ कि वहाँ पे इतने महावत होते हैं, इतनी जदीद कबूतरबाजी हो रही है, दुनिया भर के शौक, उनकी मेडिसन ले लें, एनर्जी पाउडर्स ले लें, उस हवाले से वो बड़ी लंबी कबूतरबाजी कर रहे हैं। उन लोगों के दरमियान रह के भी आपने पिछले दिनों अक्टूबर के अंदर भी बेहतरीन कबूतरबाजी की। गो के सरदार अब्दुल कयूम खान साहब फर्स्ट थे, आप सेकंड आए और काफ़ी छतों को आपने बीट किया। तो ये किस तरह से आप तैयारी करते हैं इस पूरे साल? आप माशाल्लाह अकेले भी रहते हैं और ये हमारे लियाकत भाई आपके साथ इसके मावन होते हैं, तो एक अच्छा कम्बिनेशन आपका बन गया है कराची के अंदर। कितनी हाई फाई कबूतरबाजी आपके नाम से मंसूब हो जाती है कि जब आपका नाम आता है या हम मुनसिफ लगाते हैं तो हर बड़ा खिलाड़ी आपकी छत का मुनसिफ पकड़ने का शौकीन होता है कि जनाब एक बड़ी छत है, हमारा मुनसिफ यहाँ पे लगेगा, तो पर्चा भी आपका अच्छा बनता है। तो क्या तैयारी होती है आपकी, किस तरह से आप इसको मैनेज कर रहे हैं? तुम जवाब दोगे या मैं दूँ? सर आप ही दो। देखिए, बात ये होती है, बहुत सिंपल फार्मूला है, मैं आपको बता दूँ। 6 हफ्ते में कबूतरों के पर निकल आते हैं जी। हम उसको हिसाब से, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको अप्रैल के मुकाबले में हिस्सा लेना है तो 1 फरवरी को या आखिर जनवरी के हफ्ते किसी दिन पर खींच दीजिए आप जी। 6 हफ्ते के अंदर उसके पूरे पर आ जाते हैं। अगर बीमारी ना हो या कोई और बदकिस्मती ना हो तो 6 हफ्ते में पर आ जाते हैं। उसके बाद उसको 3 से लेके 4 हफ्ते मुकाबले से पहले उनको फड़काना पड़ता है जी। जो मैं अपना आप खुद फड़काते हैं, खुद में उड़ा रहे हैं कबूतर, आप खुद फड़का रहे हैं, खुद उड़ाते हैं कबूतर? नहीं, अब तो लियाकत उड़ाते हैं जी। मैं तो नहीं उड़ाता, मगर मैंने सारी उम्र खुद ही उड़ाया है। जी हाँ। 4-5 साल से लियाकत मेरी मदद कर रहे हैं, ये उड़ाते हैं जी। तो 3 हफ्ते के अंदर हम फड़का के ये देख लेते हैं कि कौन से 10 या 15 ऐसे कबूतर हैं जिनको रंगा जाए, जिनका ख़ास ख्याल किया जाए, थकावट उनकी दूर की जाए, बादाम उनको खिलाया जाए। तो ये जो मामला होता है ये 3 हफ्ते फड़कों के बाद मालूम हमें हो जाता है। इस कबूतरबाजी में अब क्या फ़र्क देख रहे हैं? जो 25 साल पहले कबूतरबाजी थी या आपका एक कोसार कप था, आपने उसको मेंटेन किया, कराची के लोगों का डिफेंस क्लब को आपने चलाया, उस वक्त की कबूतरबाजी थी और आज एक कबूतरबाजी है, बड़ी कबूतरबाजी में भी आप शामिल हो चुके हैं, उसमें क्या फ़र्क देख रहे हैं? क्या तब्दीली आई कबूतरों के अंदर? इसमें अंदर कबूतरों के अंदर जो तब्दीली आई उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर ये ज़रूर है कि घंटे जो हम बनाते थे 50 और 55 उस पर हम बहुत खुश होते थे जी। अब वो मामूली समझे जाते हैं। अच्छा। अब 55 तो खैर अच्छा होता है, मगर अब तो 65 के ऊपर की बात लोग 60 से ऊपर की बात हो रही है और 70 और 75 तक जा एवरेज में 60 का शुमार है एवरेज में। तो पहले ये नहीं था, पहले 10 घंटे कम से कम थे। तो अब ये इसकी क्या वजह है? इसमें 2 सूरतें हो सकती हैं। या तो नस्लें ऐसी लोगों ने बना ली हैं इतनी उम्दा सिलेक्टिव ब्रीडिंग से कि वो इतने घंटे बना रही है, या कुछ दवाओं का इसमें हाथ है जो हम इस्तेमाल नहीं करते और ना हमें मालूम है कुछ। तो इसीलिए मैं अपने आप को उस्ताद भी नहीं कहता, लेकिन दवाओं के मामले में मैं बिल्कुल कोरा हूँ, मैं इस्तेमाल नहीं करता और इसलिए लोग कहते हैं कि भाई ये तो अनाड़ी टाइप आदमी है। जी, आपने भी माशाल्लाह मुख्तलिफ बर्ड्स रखे हुए हैं, इसमें टेडी भी नज़र आ रहे हैं, गोल्डन भी। तो ये क्या समझते हैं आपकी कामयाबी में, जो इस तरह शौक़ आप कर रहे हैं और अच्छी परवाज़ी मुकाबलों में शामिल हैं? कौन से बर्ड्स आपको ज़्यादा पसंद आए जो इसमें उड़ान के हिसाब से आप बताइए ज़रा। देखिए, उड़ान तो हर नस्ल में होती है जी। ये कहना कि जी गोल्डन अच्छा है या टेडी बुरा है, ये सब गलत बात है। गोल्डन में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, टेडी में भी अच्छे और बुरे हैं। तो जाहिर है कि आदमी जब उड़ाएगा तो सबसे अच्छे उसके कबूतर ही होंगे, उन्हीं को हिस्सा लेगा उड़ान में। अब अगर आपका सवाल का मकसद ये है कि भाई गोल्डन अच्छा है या टेडी, दोनों बराबर के हैं, उसी तरह गोल्डन में अच्छे निकलते हैं, बाज़ बिल्कुल ही बेकार, और इसी तरह टेडी में, और हर नस्ल में है। हर नस्ल का जी फ़र्क आता है। नस्ल में अच्छे बुरे होते हैं, ये कोई नहीं होता कि ये फला नस्ल का है तो ये शाम को बैठेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। माशाल्लाह। अच्छा, कराची के अंदर जो इस वक्त कबूतरबाजी है या गुज़िश्ता दिनों में आपने शौक़ किया है, आपके बड़े अच्छे मरासिम रहे आरिफ अहमद खान साहब से, आपके अच्छे फ्रेंड्स में, आपके दोस्तों में उनका शुमार होता है, सरदार अब्दुल कयूम खान साहब हैं और दीगर दोस्त हैं, डॉक्टर साहब हैं। तो आप क्या समझते हैं ये किस तरह की मैनेजमेंट चला रहे हैं और किस हद तक आप इनके शौक़ के अंदर
भरोसा करते हैं कि जी ये अच्छे शौकीन हैं, अच्छा कप चला रहे हैं कराची के अंदर? तीनों जो नाम आपने लिए वो तीनों बड़े मशहूर लोग हैं कराची के, बहुत अच्छे उड़ाने वाले हैं तीनों, जी। और बहुत अच्छी तरह कप का इंतज़ाम हुआ है, हो भी रहा है और होता रहेगा, मुझे उम्मीद है। तो आप कुछ मशवरा देना चाहेंगे, मज़ीद कुछ बेहतरी की तरफ अगर लाना चाहें, कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो या आपके दिल में हो कि ये बेहतरीन, क्योंकि आप एक सीनियर शौकीन हो, उस वक्त जब कराची के कबूतरबाजी ही ख़त्म हो चुकी थी, पट्टी वालों ने ले लिया था, आप इसको लेके चले, इस काफ़िले को आपसे मंसूब किया जाता है आज भी कराची के अंदर कि काबिली कबूतरों को अगर बचाने में या उसको संभालने में जो सेहरा है वो हाशिम इसहाक साहब के पास है। तो आज के दौर में आप क्या समझते हैं कि बेहतरी मज़ीद क्या लाई जा सकती है शौक़ के अंदर? देखिए बेहतरी या कमी क्या है? किसी कमी हद तक तो आ चुकी है, जब जी। आप घंटों का देख लें हिसाब कि 55 या 50 जो हम बहुत अच्छे समझते थे 10-15 साल पहले, वो अब मामूली समझे जा रहे हैं कराची में, बिल्कुल मामूली। और अब लोग जो है वो 70-75 की तरफ उनकी रुझान है काबली का। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि जो बाकी 75 और उसके ऊपर वाले हैं वो सारे पट्टी वाले क्रॉस। अच्छा। कोई ऐसी बात नहीं कह रहा, इसलिए कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है जी। क्या है ये क्या नहीं, मगर हो सकता है कि इसमें दवा का हाथ हो, कोई ऐसा मेडिसिन है या कोई ऐसी दवाएं हैं जी। उसने कुछ परवाज में इजाफा किया, और ये भी हो सकता है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग से भी कबूतरों की नस्लें बेहतर हो गई पिछले टाइम से। अब माशाल्लाह लोगों ने मेंटेन कर लिए हैं, कबूतर भी अच्छे बना लिए, मेहनत अच्छी हो गई है, फिर कुछ मेडिसिन का भी इसके अंदर दखल हो गया है अच्छे शौक़ के अंदर। तो आप किससे कराची की कबूतर परवरी में आप किससे इम्प्रेस हैं कि आप समझते हैं कि ये एक अच्छा और ऑनेस्ट खिलाड़ी है आपके दोस्तों के अंदर? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है सर। आप मैं कहूँगा दूसरा बुरा मानेगा। देखिए मैं जो हमारे ग्रुप के जो अच्छे खिलाड़ी हैं जी, हम अपने ग्रुप की बात कर रहे हैं, बुरा नहीं मानेंगे आपके। कयूम, डॉक्टर अमजद और आरिफ अहमद, आरिफ तीनों बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा उड़ाने वाले हैं, तीनों बहुत अच्छे। जी हाँ, माशाल्लाह मैनेजमेंट भी अच्छी चला रहे हैं, कबूतरबाजी भी कराची के टॉप लेवल की कबूतरबाजी कर रहे हैं और हॉनेस्ट खिलाड़ी हैं, अच्छे शौकीन हैं, ईमानदारी के साथ कबूतरबाजी कर रहे हैं। तो आपकी छत के ऊपर मैं अक्सर जब भी राउंड पर आया हूँ तो मैंने देखा आपके साथ एक आपके बड़े प्यारे दोस्त आपके साथ मावन होते हैं, सरदार अजीम खान साहब। खान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अभी आपका मैंने मुकम्मल तारुफ पहले कराया है। आप माशाल्लाह एक बड़ी फैमिली से आपका भी ताल्लुक़ है। इस वक्त हम दोनों ग्रेट पर्सनैलिटी सर हाशिम इसहाक साहब के साथ भी मौजूद हैं और सरदार अजीम खान साहब हमेशा की तरह शौक़ में इनके साथ यहाँ मौजूद रहते हैं। आज फिर हमें आपके साथ मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। कि आप क्या समझते हैं अजीम भाई, जो शौक़ इस वक्त हाशिम साहब कर रहे हैं कराची के अंदर, बड़ा शौक़ इनके नाम से मंसूब है, तो इनकी कबूतरबाजी को आपने कैसा देखा? मैं दोनों चीज़ें देखता हूँ, इनकी कबूतरबाजी भी देखता हूँ और इस एज में इनका शौक़ भी देखता हूँ, क्योंकि इस एज में छत तक आना और ये सारा कुछ देखना और सेलेक्ट करना किसको उड़ाना है किसको नहीं उड़ाना है, ये दाना शाना ये वो सारा कुछ, ये बहुत बड़ी इनकी क्वालिटी है कि इस एज में ये सारे काम करना। और मैं इसी वजह से हमेशा इनकी जब भी उड़ाने ख़ास तौर पे होती हैं, बाजियाँ ख़ास तौर पे होती हैं, तो मैं यहीं पे मौजूद होता हूँ जी। मैं किसी ज़माने में जाता था सरदार कयूम की छत पे भी जाता था, लेकिन अब तकरीबन मेरा रिकॉर्ड यही है कि मैं यहीं पे आता हूँ। यही चीज़ें मुझे इनकी पसंद है। एक अच्छा शौक़ आपको देखने को मिल जाता है, आप आते हैं, देखने को मिलता है, मुझे अच्छी पर्सनैलिटी भी देखने को मिलती है, अच्छी गपशप भी देखने को मिलती है, तो इस वजह से मेरा आना यहाँ पे ज़्यादा जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। जैसा आपने देखा हमारे दोनों दोस्तों को, हमारे इस लोगों को जो हमारे कबूतरबाजी में हमारे साथ मुंसलिक हैं, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आप भी यहाँ पर आए और आपने ऐसे लोगों को मिलने का हाशिम साहब ने मौका दिया। गो के हाशिम साहब बहुत कम इंटरव्यू देते हैं कबूतरबाजी में, मगर हमारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हम आपसे चंद लम्हात चाहते हैं इनके साथ बैठने के लिए, तो इनके शुक्रगुजार हैं। आप क्या महसूस कर रहे हैं सर? जी राशिद भाई, एक तो मैंने पहले कहा कि कमाल है ऐसे लोगों से मिलना ही जी। इतने बड़े लोग फैमिली तौर पे देखा जाए तो बर्रे सगीर में इनकी फैमिली को एक आज़ाद हासिल है।
جی آپ نے مجھے بتایا تھا آپ وہاں گئے تھے مزار بالا کوٹ میں ٹور پہ جاتا رہتا ہوں تو وہاں دعا کرتے ہیں سید احمد شہید کے مزار پہ جاتے ہیں. اچھا آپ گئے ہیں ماشاءاللہ ہاں وہاں پر. جی نہیں میرے ٹور کا حصہ میں نے پورا پاکستان وزٹ کیا ہوا ہے سارا. جب آپ نے کہا نا ادھر بیٹھے ہوئے رات کو کہ ہمارے دوست ہاشم بھائی کا تعلق ان کی فیملی سے ہے تو یقین اسماعیل بھی ہاں جی اسماعیل شہید بھی ادھر ہی ہے وہ ہاں جی بھی قبر وہیں ہے. جی وہیں پہ ہاں جی جاتے ہیں کہاں پر ہاشم صاحب کدھر کون کون سے آپ کی فیملی کے لوگ ہیں جو پاکستان میں مدفن ہیں؟ ہماری فیملی جی جو آپ نام آپ نے ابھی بتائے جیسے ادھر ہی ہے. سید احمد شہید سید احمد شہید کے ہم لوگ ہیں جی اور بہت سارے ہمارے رشتہ دار ہیں کراچی میں. نہیں جو وہاں پر بتا رہے ہیں بالا بالا کوٹ. کوٹ کی بات ہو رہی ہے نا. اچھا بالا کوٹ. بالا کوٹ میں یہ ہوا تھا کہ سکھوں نے سید احمد شہید کو جب شہید کیا جی ان کا سر کاٹ کے اوف. رنجیت سنگھ کو بھیج دیا اور جو دھڑ تھا وہ دریا میں پھینک دیا. اچھا ہاں جی ہاں تو انہوں نے ایک اندازن کر کے ایک مقبرہ بنایا ہے کہ بھئی یہاں ان کا ہے ہاں جی وہ یادگار کے طور پہ یادگار ہے وہ. مگر اصلی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کا دھڑ دریا میں گیا اور سر چلا گیا رنجیت سنگھ کے پاس. اچھا یعنی کہ وہ ایک یادداشت کے طور پر جو ہے وہ جو جگہ بنی ہے جو مقبرہ بنا ہوا ہے وہ ان کے مطابق وہ ایک یادداشت کے طور پہ ہے کہ وہاں پہ نہ سر ہے نہ دھڑ ہے اور جب ان کو شہید کیا گیا تو سر لے کے چلے گئے. یہی ہمارے شہداء کی ایک نشانی ہے. دھڑ جو ہے انہوں نے دریا میں یا نہر میں یا جہاں بھی بہا دیا جو کہ کبھی نہیں ملا. تو یہ ان کی یاد ان کی بہادری کی وجہ سے بہادری کی یادگار ہے. یادگار ہے. جی ماشاءاللہ. اس میں تھوڑی سی معذرت عظیم بھائی وہ مارکا ہی وہیں پہ ہوا تھا. اچھا 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 اچھا. تاریخ اگر پڑھیں تو آپ اس میں لکھا ہوا ہے بالا کوٹ کے مقام پر میں وہی کہہ رہا ہوں شہادت ہوئی ہے بالا کوٹ کے یہ ہم نے پڑھا ہے. جی میں وہی کہنا چاہ رہا تھا بات کنٹینیو کرتا ہوں وہیں سے کہ جب وہ مارکا تھا ویسے تو ہمارے ہاشم بھائی نے بتا دیا ہے کہ ایسے ایسے وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ راستے میں دریا عبور کرنے سے پہلے یہ دعا کر کے جاتے ہیں. اچھا اچھا. ٹورسٹ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو یہ کہہ لیں کہ ہابی میں شامل ہیں ان کی آتے ہیں کہ یار جاتے ہوئے بزرگوں سے مل کے جانا. تو ایک تو یہ اعزاز دوسرا یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو آپ کو پتہ ہے کہ میری کمزوری ہے. جی 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 یعنی کہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ شوق میں حصہ لیتے ہیں ان کی انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ کمال ہو گیا. اصل میں کبوتر پروری جو ہے نا ہماری اسے بہت بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. مگر ہم کراچی میں اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرتا ہے کبوتر پروری کو معیوب سمجھتا ہے تو ہم مثال دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہاشم صاحب جیسے لوگ موجود ہیں, ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ موجود ہیں, عارف احمد خان ہیں, سردار عبدالقیوم خان ہیں, سردار عظیم ہیں. اتنے ماشاءاللہ لوگ ایسے فخریہ طور پر ہم بات کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ یہ ہماری کبوتر پروری کا حصہ اور ہم اس سے منسوب ہیں. میں تو ایک آرگنائزر ہوں نا ٹیم کا, مجھے پتہ ہے کہ میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو ہاشم صاحب کی کیا رسپیکٹ ہے, کس طرح سے ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں چند لمحات مل جائیں, بات کرنے کا ٹائم مل جائے ہاشم صاحب سے. تو بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتی ہیں یہ باتیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا وقت گزارا جائے. میں تو کہتا ہوں ہمارے لیے اعزاز ہے نا, یہ بالکل اعزاز ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہاشم بھائی کا. میں تو تصویروں میں بھی دیکھتا تھا آپ کے جو بے پناہ انٹرویوز ہیں پورے پاکستان کے اندر, بہت یہ سب سے ہٹ کر اور سب سے آپ کے چینل کے لیے فخریہ طور پر یہ, اور ہم شکر گزار ہیں کہ چند لمحات دیے ان سے مل کے بھی اور کبوتر پروری کے حوالے سے بھی. ان کے کبوتر آپ نے کبوتر دیکھے آپ نے؟ نہیں آپ نے لیاقت کو ایک دو کبوتر دکھاؤ اچھے کبوتر جن کا آپ کے مقابلوں کے اندر عمل دخل ہے, شوق کے اندر وہ ذرا کبوتر دکھائیں کہ کون سے کبوتر ہیں. جی ہاشم بھائی انٹرٹین بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ جی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کھانا پینا بھی چلے گا اور گفتگو بھی جاری رہے گی. اور جو ہمارے عظیم بھائی ہیں وہ تو ہمیشہ ہی ماشاءاللہ آگے ہوتے ہیں ہر کام میں جی. چاہے ہم سے پہلے شروع کر دیا جی. بڑے بھائی آپ کی مرضی ہے, آپ نے انتظار بھی نہیں کیا ہمارا جی. ہم نے سب سے پہلے چائے آپ کے ہاتھ میں دی. کاو آگے کاو. آپ نے چائے سے بہتر جو ہے وہ کیمرے کو سمجھا. میں سمجھتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک ایک لمحہ جو ہے نا میرے بزرگوں کے ساتھ گزرے. ابھی بھی جو چائے میرے ہاتھ میں
ये चाय और ये हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए। जी हाँ चाहिए। तो सिर्फ बातें नहीं, हाँ जी। साथ में कुछ खुराक और कुछ हल्का फुल्का ये भी हो जाए। जी इस बिल्कुल वजह ठीक। से जो है मैंने चाय का प्रोग्राम भी शुरू कर दिया था साथ में। हाँ जी। लेकिन ये है कि ये पकी गुल आप अभी भी बैठे तो आपको ये चाय में फिर से दे सकते हैं। चमचा भी चला दिया है इसमें मैंने चीनी कबूतरों भी पे शौक डाल करेंगे जी थोड़ा सा, हैं? हाँ बिल्कुल करेंगे। चलें ठीक है, मैं इधर कुछ सिलेक्ट कबूतर अगर वो अच्छे दिखा दे तो हम देखेंगे इंशाल्लाह। मुझे ज़्यादा ख्वाहिश इसकी होती है दिखाएं, उस तक फिर जी। चाय बाद में पीते रहें। इब्राहिम भाई आप इधर बैठ जाओ आप बैठ। हाँ जी दिखाएं मुझे जी। जी लियाकत भाई आपको शौक कराएंगे कबूतर। जी लियाकत भाई। साथ साथ थोड़ा सा उसके बारे में ये बता दें कि ये कौन सा है, क्या है। हाँ जी लियाकत भाई बताएंगे जी। ये फकीर गोल कबूतर है। हाँ जी इनका तो कबूतर हैं कराची के। खोले इसके पर्ची दिखाएं दोस्तों को। जी बस ठीक है, इधर से जी। कराची के हवाले से जब भी आते हैं फकीर गोल का जिक्र होता है जी। आज ये कितने की प्योर हैं जी, या एक ही रंग रूप में अभी वैसे चल रहे हैं या कि मेल किया है इसमें कुछ? नहीं ये तो प्योर चल रहा है, लेकिन मुख्तलिफ हैं हमने जिनको क्रॉस किया उड़ाने के लिहाज से। यानी कि ये हम असल देख रहे हैं। ये असल है, प्योर है। लेकिन जी फकीर गोल की आंखें तो वैसे लगती हैं, अभी देखता हूँ मैं जी जैसे हमने देखे हुए हैं जी। लेकिन इतने बड़े उस्ताद के पास इतने बड़े गर्भ में ये पड़े हुए हैं तो यकीनन वैसे ही होगा। दिखाएं इसकी आंख भी। बहुत कारगर खींच दिया इसने। अच्छा केज है, आज मैंने बहुत जल्दी आ जाएंगे वो और कुछ पीछे थे तकरीबन बिगिनिंग मार्च में आ जाएंगे, पर तो एक हफ्ता एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। और माशाल्लाह जी क्या फकीर गोल का आप शौक कर रहे हैं जी। 15 मार्च तक बाज बहुत होता है। हाँ, तो 15 के बाद ही हाँ याद रखिएगा, इसलिए कि वो टेडी का भूखा होता है। जी ठीक हो गया। यही बात हो रही है। जब क्रॉस वापस किया चली है जाती फकीर गोल के फरवरी साथ। के एंड में। अच्छा फकीर गुलों के बाद क्रॉस होने के बाद टैडी के ये रंग रूप बनता है कह रहा था कि मार्च में मार्च ऐसे ही है? आते हैं। तो एंड ऑफ मार्च ही इब्राहिम भाई ये तो बहुत मजबूत हो गया माशाल्लाह। बहुत अच्छी परवाज होगी इसकी। इसके भी पर दिखाएं हमें। मैं तो 15 को निकालूंगा और 20 से उड़ाऊंगा। खोल दे। 20 और 31 तक खतरा है ज़्यादा। खतरा तो अप्रैल में भी होता है जी मगर कम। अप्रैल में, लेकिन जी फकीर गुल टैडी क्रॉस देखें जी कितना ज़बरदस्त इसने आर्टिशन की है जी। मज़ा आ गया मुझे तो। दोनों ही असर हाजिर के मुताबिक टैडी और कदीम कह लें फकीर गुल वो अपनी मिसाल खुद आप ये हैं। हमारे कराची के बलोच शुक्रिया। भाइयों का हमारा तोहफा इसके है पर भी कराची तो वो पंजे भी दिखाएं वो कैसे होते हैं, को फर्क है। बस ये छोड़ दो। मैं सेशन एक करूंगा 28 को फ्लावर का। एक और कबूतर का अच्छा कबूतर अपना बात कर सकते याद जरूर कराइए। नहीं मैं तो आपको फोन करूंगा। याद मुझे जरूर कराइए, इसलिए कि मैं भूल जाता हूँ। अभी भी मैं आते हुए भूल रहा था, कहीं बीच में ऐसा तो नहीं है कि कोई दिन ऐसा आपने बुलाया और मैं भूल गया हूँ। ये छत की तैयारी है जी अप्रैल वाले टूर्नामेंट के अंदर। हफ्ते 10 दिन से खिलाऊंगा। मैं याद होती है महीना 1.5 महीना तो मैंने कहा वो खत्म हो गया। जी ये जो फेस मेरे घर के नज़दीक वाला पेट्रोल पंप है, इसके नज़दीक अगर आप आएंगे ना तो आपका दिल में खुश कर दूंगा वो फूलों की कम्युनिटी की तरफ। एक आध दिन में निकलिए, मुझे बताइए, मैं आ जाऊँगा पेट्रोल पंप पे, वहाँ से मैं आपको कंपनी लेके ले जाऊँगा। आप वो गली देखें, आपका दिल खुश हो जाए। जी मलक साहब कोई सवाल करना चाह रहे मैं हैं? हाशिम भाई से थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। बताइए। हाशिम भाई ये पैदाइश जो ये कबूतरों का शौक जो है ये पैदाइशी है या बाद में किया आपकी या फैमिली से क्या? कैसा चल असली रहा है? हमारे वालिद मरूम को जी। शौक था कबूतरों का। उड़ाने का नहीं था, रखने का था, रखने पालने का था। वो पालते थे शिराजी कबूतर, अच्छा बहुत शौक से जमा करते थे। ठीक है। तो वो तो हमने बचपन से देखा, मगर मुझे फिर रफ्ता रफ्ता ये मालूम हुआ कि उड़ाने में ज़्यादा मज़ा है पालने से। जी ठीक है। बिल्कुल कम उम्री से ये शौक हो गया। जी ठीक हो गया। तो कराची में ही अच्छा इधर हाँ, इधर। यानी कि आपका सारा वक्त कराची में गुजरा है? नहीं, सारा वक्त तो मेरा यहाँ नहीं गुजरा है, मेरा लंदन में भी गुजरा है, लाहौर में भी थोड़ा सा गुजरा है, ठीक ठीक। मगर ज़्यादातर मैं कराची मोस्टली का। हाँ बस वही मैं कह रहा हूँ जी। ज़्यादा टाइम इधर ही है सारा। ठीक है ठीक है। वो तो टूर के सिलसिले में जॉब के सिलसिले में ये सब जी, अजीम भाई शौक कराएंगे इस कबूतर का। अजीम भाई कैसा कबूतर है, क्या है के सिलसिले दिखाइएगा। में मैं लंदन में रहा हूँ बहुत साल। ये इनके एक जी, कामयाब और कबूतरों में उसके से अलावा बेहतरीन पर देखें आप स्कूलों इस में कबूतर मुख्तलिफ का। जगहों में, अहमदाबाद में, लाहौर में। हाशिम भाई
लोग कहते नहीं थे उस वक्त आपको कि आप कबूतर रख रहे हो यार? अभी कहते हैं हमारे साथी जो है सब कहते हैं कि भाई ये क्या तुमने मजाक किया है, ये कबूतरबाजी। सही है। मैं पूछ रहा हूँ कि हाशिम भाई वो लोग कहते नहीं है आपको पर्सनैलिटी देखे कि यार कबूतर रख रहे हो यार? नहीं, वो ये कहते हैं कि तुम लड़कियों को खत भेजते होगे। अच्छा। जहांगीर और शाहजहां के जमाने में ये होता था, तुमने उनसे सीखा है। हाँ जी। मैं कहा भाई यहाँ लड़कियां अब खत के मुताज नहीं है, अब तो घर जैसे भी जाए। वैसे हाशिम भाई एक बात है कि शाही कबूतरों के हवाले से मलका तो सरफरिस्त है जी। उनके पास बहुत सारे कबूतर हैं जिसको शाही कबूतर कहते हैं, जो ये जंगों में इस्तेमाल भी उतरे हैं बरसगीर में। आप तो जानते हैं इस हवाले से, उनको इस्तेमाल करते हैं। आज भी मलका बरतानिया के बाद सबसे ज़्यादा बर्ड है और उनको शाही कबूतर का दर्जा है। एक हमारे पास भी किसी ने तोहफा दिया था इनके लिए जी। और रेसिंग पिजन हमारे पास भी पड़ा हुआ है। हाँ जी, वो इस्तेमाल होते रहे हैं। लियाकत भाई दिखाइएगा क्या कबूतर दिखा रहे हैं आप, कौन सा बैठे हैं इधर? इनको भी दिखाया भाई, ये भी तो इनका तो पूरा इंटरव्यू चला कर रहे हैं। ये कौन सा कबूतर है लियाकत भाई? दिखा रहे हैं ये जी। फकीर गुलाम है, ये भी क्रास है लेकिन बहुत ज्यादा क्रास है। अच्छा, ओरिजिनल दिखाया बहुत अच्छा कबूतर है वो। उन्होंने इसका पल्ला दिखाइएगा, पर दिखाएं। इंटरव्यू में कहा थे। इधर से ये देखिए, ये जी पूरा पर देखें जी, इसका बगल तक का आपको साफ नजर आएगा ये मास्टरपीस है जी। मियाँ माजिद रुस्मे कसूर साढ़े नाल ने जी इस टाइम जी। साकब बाबा भाई साढ़े नाल ने जी। मैं दोस्तों तुहानू एक दफ़ा फिर अपडेट करता चला जी कि हाशिम इसाक भाई जो है हमारे साथ इस मौजूद हैं। कराची कबूतर परवरी के हवाले से इतना बड़ा सीनियर नाम है जी, इनकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है, क्योंकि फैमिली तौर पे इनकी फैमिली को शहादत का दर्जा भी हासिल है जी। सैयद अहमद शहीद के हवाले से पूरी दुनिया जानती है जी कि बालाकोट में उनका मज़ार भी आज भी मौजूद है। जिस जगह मार्का हुआ था ये उनके पुत्र जी सैयद अहमद के क्या रिश्ते में क्या है जी? सैयद अहमद शहीद वो तो 14वीं नहीं क्या थे, आप क्या लगते हैं जी? पड़पोते। 14वीं पुश्त में रिश्ता है। चले यानी कि है तो सही ना, वो बात तो हुई हो रही है नहीं, ना। हाँ जी, उन्हीं के हवाले से बात हो रही है। ये देखें जी, शौक भी है देखें, और उम्र देखें, शौक देखें, तालीम देखें, यानी कि हर शोबा ज़िंदगी में टॉप ऑफ द लिस्ट ही रहे हैं जी। और शौक करते हैं, प्योर करते हैं, इल्म हासिल किया, दुनिया घूमी, जॉब्स की, सब कुछ किया होगा मेरा ख्याल। और कबूतरों का शौक भी है। हमारे लिए एजाज़ है कि इतने अच्छे लोग कबूतर रखते हैं, क्योंकि जो हमारे साथ मोहतरम थे उस्ताद बहु हसन साहब चौक घंटाघर फैसलाबाद वाले, वो भी पार्टीशन से पहले BA थे। वो कहते थे कि बेटे ये शौक ही सारा पढ़े लिखे लोगों का है, वो अनपढ़ों को शिगिर्दी नहीं करते थे। मुझे जब भी मैं बात करता हूँ, जैसे मिकाइल की बात करता हूँ, आज से सारा हाशिम की बात इंशाल्लाह। जी दोस्तों, फिर मैं जाते हुए बस सिर्फ ये कहूँगा कि मेरे मोहतरम, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग शुक्रिया हाशिम भाई को पैगाम दे दे जाते हुए, एक अच्छा पैगाम कबूतर परवरों के लिए। पैगाम हाँ, कुछ छोड़ दें। शौक जारी रखें और महंगाई को भूल जाएं। ओ जिंदाबाद, ठीक होगा जी, वेलकम जी, शुक्रिया। महंगाई तो होती रहती है, शौक जो है वो जारी होना चाहिए।